کوئی دبدبے والا شخص زنا کے قانون سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے؟ کیا آج سماج کو دیکھ کر کے، کاسٹ کو دیکھ کر کے، چہرے کو دیکھ کر کے، نسل کو دیکھ کر کے، ذات کو دیکھ کر کے، رخ کو دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے، برادری دیکھ کر کے سزاؤں کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی نیتا کا قریبی کام کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہی کام کوئی غریب شخص کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ پولیٹیشینز اگر ہو، ان کا قریبی اگر کوئی ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہی کام کوئی غریب شخص سے ہو جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہی چیز تو شریعت اسلامیہ نے پہلے ختم کی ہے کہ جس کو بھی سزا دو تو سزا چہرہ دیکھ کر کے مت دو، سزا چہرہ دیکھ کر کے مت دو، بلکہ سزا اس کا جرم دیکھ کر کے دو۔ اگر بادشاہ سے وہ گناہ صادر ہو جائے تو بادشاہ کو بھی وہی سزا دی جائے جس سزا کا ذمہ دار اور حقدار ایک غریب شخص اس گناہ کو کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین، ناظرین، تقریباً 6 مہینے کے بعد ہماری یہ ملاقات ہے۔ ملک کا ابھرتا ہوا ایک حساس موضوع سرزمین یو پی سے نکل کر ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کی ایک بیٹی کے ساتھ کچھ درندوں نے درندگی کا ثبوت دیا ہے عفت و پارسائی کو تار تار کرنے والا بدنما کام کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان رسوائی اور ذلت مول لینے والا کام انجام دیا ہے۔ قانون بنتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، مجرم چھوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں چند دن تک جملوں کی شکل میں مظلوموں کی قدم بوسی کرتی ہے، لیکن چند روز کے بعد نہ تو کسی ڈیبیٹ میں اس مظلوم کا نام آتا ہے، نہ ہی کسی اخبار کی سرخی میں اس کا نام دکھائی پڑتا ہے، اور نہ ہی دانشوران قوم و ملت ایسے لوگوں کو یاد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ قانون جس حد تک سزائیں دینے کا کسی جرم میں مجرم کو پابند ہے، کیا اس حد تک سزا دینے کے بعد اس جرم میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سزائیں کارگر اور مثبت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب ان سزاؤں کے نفاذ کے بعد مجرم جرم کرنے سے باز آ جائے، گنہگار گناہوں سے توبہ کر لے، قصوروار قصور کا اعتراف کر لے، ملزم پر جو الزام عائد کیے گئے وہ الزام ملزم اپنے آپ قبول کر لے، تب تو وہ بنایا ہوا قانون کارگر اور مثبت ہے۔ اور اگر کہیں قانون ملزم کو کھلا گناہ کرنے کا اشارہ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے،
تو پھر اس قانون میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ضرور بسی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس سے قبل ایک تمہیدی بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف سزائیں بنا دینا کسی بھی گناہ کے لیے، کسی بھی جرم کو روکنے کے لیے، گناہ گاروں کو باز رکھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ کی جڑ کیا ہے، اس گناہ کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، وہ محرک کون سے اثرات ہیں جو گناہگار شخص کے دل میں جا کر حرکت پیدا کرتے ہیں اور اس کے نفس کو بھڑکا کر کے اسے گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ جس طرح سے گناہ کرنے والا انسان گناہگار ہے، اسی طرح سے وہ سارے اسباب بھی گناہگار ہیں، جن اسباب کی بنیاد پر، جن راہوں پر چل کر گناہگار گناہ کو انجام دیتا ہے اور اپنی شہوت کو پوری کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو سزا جہاں پر گناہگار کو گناہ کی دی جاتی ہے، وہیں پر سزاؤں کو متعین کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ گناہ کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، جن اسباب اور محرکات پر چل کر کے انسان گناہ کرتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح میں بیان کرتا ہوں: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ لوگوں، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ شریعت محمدیہ نے، شریعت اسلامیہ نے گناہ کرنے سے تو روکا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس بات کا بھی مسلمانوں کو اور ساری کائنات کو پابند بنا دیا ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے میں، دنیا کی گلیوں میں، لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی امنگوں کے اندر لوگوں کے بھڑکتے ہوئے جذبات کو ٹٹولتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ نکل کر کے آتا ہے کہ زنا صرف ایک عورت اور ایک مرد کی قربت کا، بدفعلی کا نام نہیں ہے، بلکہ زنا ان سارے اسباب و محرکات کا بھی نام ہے جو اسباب و محرکات انسان کو بستر زنا تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس چیز کے لیے ہم نے دانشوران قوم و ملت کی کتابوں کا مطالعہ کیا، پڑھے لکھے لوگوں کی تحریرات کا مطالعہ کیا، مصنفوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو سب سے واضح طور میں آج سے 1450 سال پہلے ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے زنا کے اسباب ہم لوگوں کو گنا دیے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ والعینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ الخطا، والقلب یہوی ویتمنی۔ لوگوں، اللہ نے تو فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب کن وجوہ سے انسان جاتا ہے وہ وجوہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ وجوہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے نگاہوں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی کو بری نگاہ سے دیکھو، بد نظری کرو۔ زبان کا گناہ اور زنا یہ ہے کہ تم اپنی زبانوں سے بری بات کہو۔ کانوں کا زنا یہ ہے کہ تم اپنے کانوں سے بری باتوں کو سنو۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے
बुरी चीज को पकड़ने का काम करो। पैरों का जिना यह है कि पैरों को बुरी जगह पर ले जाने वाला काम करो, और दिल का जिना यह है कि तुम्हारा दिल बुरी बात के लिए धड़कता है, बुरी बात के लिए तड़पता है और शहवत परस्त हो जाता है। ये सारी चीजें जिना के असबाब और दवाई में आती हैं, और जिना की एक ख्वाहिश और हरकत एक शख्स के अंदर पैदा करने वाली है। इसलिए जिना से बचना तो जरूरी है ही, मुहर्रिकात जिना, असबाब और दवाई जिना से भी बचो ताकि तुम जिना के करीब भी ना हो पाओ। मोहतरम सामीन इकराम, अब जब हम इन सारी चीजों का मुताला दुनियावी तर्ज पे करते हैं, दुनियावी लिहाज से करते हैं, तो हमारे सामने खुल करके ये नतीजा निकलता है कि आज हमारे मुआशरे में, हमारे शहर में, हमारे समाज में जो गंदगी भरी हुई है और लोगों के जहन जिना की तरफ माइल हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुहर्रिक अगर कोई चीज है तो वो है इंसान की निगाह। कि इंसान अपनी निगाहों से बुरी चीजों को देखता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। बुरे लिबास को देखता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। बुरी चीजों को देखता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। छोटे कपड़ों को देखता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। उरिया तस्वीर को देखता है, उसका दिल गुनाह की तरफ माइल होता है। बुरी फिल्मों को देखता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। बुरी बातों को सुनता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। बुरे लिबास और सुस्त लिबास को देखता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। बुरी फिल्मों की ऑडियो को सुनता है, उसका दिल जिना की तरफ माइल होता है। हाथों की अगर हम बात करें तो हाथ से वो एक से बढ़कर के एक गुनाह के काम करता है, जिन गुनाहों को हर अक्ल खिरत रखने वाला शख्स अहले अक्ल खिरत पहचानता है और समझता है। पैरों की अगर हम बात करें तो अगर इंसान के जिस्म से पैरों का वजूद खत्म हो जाए तो वो गुनाह की तरफ अपने कदमों को नहीं बढ़ा सकता। जब कदम होंगे ही नहीं तो वो बढ़ाएगा कैसे? लेकिन हम गौर करते हैं कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने तुम्हें जो ये कदम दिया है, पैरों को दिया है, ये चलने के लिए और काम करने के लिए दिया है, ना कि गुनाहों की तरफ बढ़ने के लिए दिया है। तो इन सारी चीजों का जब हम निचोड़ निकालते हैं तो निचोड़ ये निकलता है कि जिना से बचना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन शरीयत मुतहरा ने उन चीजों से भी बचने का एक मुसलमान को, बल्कि जमी मोमिनीन मोमिनात को, बल्कि सारी कायनात के इंसान को यह हुक्म दिया है कि उन असबाब के करीब भी मत हो जो असबाब जिना के करीब करने वाले हैं। उन मुहर्रिकात के करीब भी मत हो जो मुहर्रिकात जिना के करीब करने वाले हैं। अब अगर हम जिना के लिए सजाएं मुकर्रर कर दें, अगर हम जिना के लिए कोड़े मुकर्रर कर दें, अब अगर हम जानी को जेल में डालने की कैद मुकर्रर कर दें, लेकिन हम कैद में डालने के बाद वो जानी बिस्तरे जिना तक पहुंचा कैसे, उस सबब पर गौर ना करे, उसके दिल में जिना की ख्वाहिश पैदा कैसे हुई, उस सबब पर गौर ना करे, तो फिर हमारी सजा किसी काम की नहीं रहेगी और उस कैदी को जेल में डालने का कोई सबब और मकसद नहीं बचेगा। जब तक हम जिना के करीब होने वाले असबाब को खत्म नहीं करते, ये जिना दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। जब तक हम ऐसी सजाएं मुकर्रर नहीं करते जो सजाएं लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा कर दे, उस वक्त तक ये जिना दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। सामीन ज़िवक़ात, जिना के करीब होने वाला सबब है मोबाइल पर उड़िया फिल्मों का नशर व इशाअत करना, और मोबाइल पर उड़िया फिल्में जब तक नशर व इशाअत की मंजिलें तय करती रहेंगी, उस वक्त तक लोगों के दरमियान से जिना खत्म नहीं होगा। जिना को पैदा करने वाला सबब है घरों में लगा हुआ टीवी, जिस टीवी पर बाप अपने बच्चों और बेटों के साथ बैठ करके फिल्में देखता है और एक गैर महरम लड़की का वो सत्र वो उसको देखता है, जिस उसको को कुरान पाक और नबी करीम की हदीस इरशाद फरमाती है कि देखना नाजायज व हराम है। ये जिना के असबाब है। मोबाइल में उड़िया फिल्मों का आना, टीवी और वीडियो में उड़िया तस्वीर का आना, अखबारात में उड़िया फिल्मों का उड़िया तस्वीर का नशर होना, लोगों के दरमियान बुराइयों का फैलना, ये सारी चीजें वो है कि हमें पहले इन चीजों पर कैद लगानी है, उसके बाद जिना पर खुद ब खुद कैद लग जाएगी। इसलिए जरूरी होता है कि पहले ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून में दवाई जिना और जिना की दावत देने वाले अफ़वाल व अक़वाल पर पाबंदी लगाई जाए, और वो कैद वाली पाबंदी हमें कहीं अगर मिलती है तो वो शरीयत मोहम्मदी के दामन में मिलती है, इस्लाम के कानून के आगोश में मिलती है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीधा सीधा वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, जिना के करीब भी मत हो, और जिना के करीब करने वाले जो असबाब है उन असबाब के करीब भी मत हो। और सामीन इकराम, सिर्फ जिना को खत्म करने के लिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। फिर खत्म करना है तो उसके असबाब,
کن اسباب کی بنیاد پر لوگ زنا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، وہ اسباب ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ پہلو ہو گیا۔ بہرکیف ہر چیز ہونے کے بعد قانون بھی بن گیا، سزائیں مقرر ہو گئی، اسباب و دوائی پر بھی تالا لگا دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے زنا کیا تو اب پھر اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ اب سزا بھی ہر مذہب میں الگ الگ، ہر ملک میں الگ الگ، سماج میں الگ، قانونی اعتبار سے الگ، لیکن ان ساری سزاؤں کا، سارے قوانین کا، سارے ملکوں کے قوانین کا مطالعہ کرنے کے بعد حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد سچائی یہ ابھر کر کے آتی ہے، زنا وہیں پر کم ہوا جہاں پر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوا ہے، زنا وہیں پر کم ہوا جہاں پر اسلامی قانون کا نفاذ ہوا ہے، زنا وہیں پر کم ہوا جہاں پر شریعت محمدی کا بول بالا ہے۔ اور وہ کیسے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ اور زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ شریعت مطہرہ میں دو طرح کی سزائیں ہیں زانیوں کے لیے، ایک یہ کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، جسے ہم رجم کہتے ہیں۔ لیکن ان سزاؤں کا نفاذ کیسے؟ اگر کہا جائے کہ سزا لوگوں کو مارنے کے لیے دی جاتی ہے تو میں اس بات کا انکار کروں گا۔ سزا لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں دی جاتی، سزا لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے۔ کیسے؟ اسلام کے قانون میں جب کوئی زنا کرے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، زانی اور زانیہ کو بند کمرے میں سزائیں نہ دی جائیں، زانی اور زانیہ کو چند لوگوں کے درمیان سزائیں نہ دی جائیں، زانی اور زانیہ کو کچھ لوگوں کے درمیان سزائیں نہ دی جائیں، زانی اور زانیہ کو شہر کے اس جگہ پر اکٹھا کیا جائے جس جگہ کو پہلے سے ہی تشہیر کر کے لوگوں کی آمد کے لیے مقرر کر لیا جائے، گلی اور چوراہوں پر اعلان کرایا جائے، نکڑ نکڑ گلی گلی پر اس بات کا اعلان کرایا جائے کہ آج فلاں زانی اور فلاں زانیہ کو فلاں میدان میں سزا دی جائے گی، سارے لوگ اس میدان میں اکٹھا ہو جائے، شہر کے طول و عرض سے اس میدان میں لوگ آ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، اور جب قاضی اسلام زانی سے زنا کا ثبوت فراہم کرنے کے بعد، اقرار کروانے کے بعد اس پر سزائیں نافذ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پتھر مارنے کا کام چار دیواری کے اندر کیا جائے، کوڑے لگانے کا کام چار دیواری کے اندر کیا جائے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے بادشاہ اسلام یا قاضی اسلام زانی کو پتھر مارے، اسی طرح سے جتنے لوگ دیکھتے آئے ہیں وہ سارے لوگ اٹھا اٹھا کر کے پتھر اس زانی کو مارے، اور ایک پتھر نہیں، دو پتھر نہیں،
3 पत्थर नहीं, 4 और 10 पत्थर नहीं, बल्कि उस वक्त तक उस जानी को पत्थर मारते रहे जब तक उसके जिस्म से रूह ना निकल जाए, जब तक उसकी नब्ज़े हफ्ती थम ना जाए, उसके जिस्म की हरारतें ठंडी ना हो जाए और वो मौत के आगोश में न चला जाए, उस वक्त तक उसको पत्थर मारता रहे, उस वक्त तक उसको सजाएं देता रहे। ये तो हमने देख लिया एक मुस्बत पहलू कि उस शख्स को मौत की सजा दी गई, लेकिन इसके बेशुमार मुस्बत पहलुओं को हमने नहीं देखा कि एक शख्स को ऐसे मंजर आम पर सजा देने के बाद जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो अपने आप में कांप रहे हैं कि कहीं हमसे ये गुनाह सरजद ना हो जाए और कल उस शख्स की जगह मैं हूं और सारे लोग मुझे पत्थर मारे। लोगों को ये सजाएं देखने के बाद बदन का राशा तारी हो जाता है, बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल में खौफ व हरास पैदा होता है, खुदा का खौफ पैदा होता है, शरीयत का डर पैदा होता है और कानून के नफाज का डर पैदा होता है। और ये डर उस एक शख्स को देखने की वजह से पूरे समाज से जिना को दूर कर देता है, पूरे शहर से जिना को दूर कर देता है, पूरे माशरे से जिना को दूर कर देता है। समाज में रहने वाले हर एक शख्स के दिल में ये डर बैठ जाता है कि कहीं मुझसे भी अगर ये गुनाह हुआ तो इस शख्स की तरह मैं खड़ा हूंगा और लोगों के पत्थर मेरे जिस्म पर पड़ेंगे। अगर मुझसे ये धोखे से गुनाह हुआ तो इस शख्स की जगह मैं खड़ा रहूंगा और लोगों के कोड़े मेरे जिस्म पर बरसाए जाएंगे। और ये खौफ की वजह से वो जिना से दूर हो जाता है, इस डर की वजह से वो जिना से दूर हो जाता है। ये खौफ व हरास उसे जिना के दवाई और असबाब से दूर रखता है। यही है इस्लाम का कानून और ये ऐसा कानून है कि जिस कानून पर अमल करने के बाद ना सिर्फ समाज से जिना का खात्मा होगा बल्कि पूरी कायनात से जिना का खात्मा होगा। और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि जहां भी इस तरह का कानून राइज है उस मुल्क से जिना का सुदूर खत्म हो गया है, उस मुल्क में जिना की तादाद कम हो गई है। इक्का दुक्का अगर कोई मामला भी होता है तो मंजर आम पर जानी को ला करके उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है या तो उससे गोली मार करके हलाक कर दिया जाता है। एक बात और निकल करके आती है सामीन इकराम, मैं आपके सामने वो बारीक बात रख रहा हूं, हर मजहब को, हर समाज को, हर मुल्क के कानून को जिसकी जरूरत है। यहूदियों ने अपने रसूल पर नाजिल होने वाली किताब में तहरीफ की। कैसे तहरीफ होती है? तहरीफ ऐसे होती है, दो यहूदी सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने का सबब वो शादीशुदा से उनसे जिना हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी सजा जो मैं मुकर्रर करूंगा मानोगे? वो अपने दिमाग से ये बात सोचते हैं कि मान लो मोहम्मद रसूलुल्लाह आसान सजा बताएंगे। दोनों कहते हैं ठीक है। आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम यहूदी हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं तुम्हारे मजहब में तुम्हारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई है उस किताब में जिना की सजा क्या है? कहते हैं घोड़े पर बैठाकर चेहरे पे काली पोत कर उसे समाज में घुमाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यह सजा तुम्हारे मजहब में नहीं है, तुम्हारे मजहब में कुछ और सजा है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा यहूदी आलिम कौन है? कहते हैं इब्ने सूरिया। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं यहूदी आलिम को बुलाकर उससे पूछूं कि तुम्हारे मजहब में जिना की सजा क्या है तो तुम मान लोगे? दोनों कहते हैं हाँ मान लूंगा। उसको बुलाया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सूरिया से इरशाद फरमाया, ए इब्ने सूरिया, तुझे उस रब का वास्ता जिस रब ने मूसा को फिरौन के लश्कर से नजात दी और फिरौन के लश्कर को दरियाए नील में गर्क कर दिया, तुझे उस रब का वास्ता जिस रब ने आसमान का सीना चीर करके तुम पर पानी बरसाया, तुम्हें उस रब का वास्ता
जिस रब ने जमीन को चीर करके उससे सब्जा उगा करके तुम्हारी भूख और प्यास मिटाने का सामान पैदा किया, तुझे उस रब का वास्ता जिस रब ने आसमान में चमकता हुआ सूरज पैदा किया और जमीन में तुम्हारे लिए मस्कन और ठिकाना बनाया, तुझे उस रब का वास्ता जिस रब ने हजरत मूसा पर तौरात नाजिल किया और कानून हक के साथ मूसा को दुनिया में भेजा। तू ये बता कि ये जिना की सजा जो शख्स कह रहा है, ये सजा क्या सही कह रहा है कि जो जिना करे उसे गधे पर बिठा करके मुंह पर काली पोत करके उसे मोहल्ले और समाज में घुमाया जाए? तो इब्ने सूरिया हजरत के इस फरमान से कि तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे उस रब का वास्ता जिसने तुझे अनाज दिया है, उस रब का वास्ता जिसने मूसा को नजात दी है, उस रब का वास्ता जिसने फिरऔन को गर्क किया है, ये सारे वास्ते सुनकर के वो कांप जाता है और बेधड़क कह देता है नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है, बल्कि तौरात में भी जानियों की यही सजा लिखी है कि उसको पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाए और उस वक्त तक उसे पत्थर मारा जाए जब तक कि उसका दम न घुट जाए और उसकी रूह जिस्म से ना निकल जाए। ये सुनने के बाद अल्लाह के रसूल दोनों यहूदियों को मौत की सजा दे देते हैं और रज्म की सजा सुना करके उन्हें रज्म कर दिया जाता है, संसार कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तौरात में जो कानून नाफिज हुआ था रज्म करने का, वो घोड़े और गधे पर काला मुंह करके बिठा करके घुमाने की रिवायत में कैसे तब्दील हो गया? तो जब हमने तफसीरों का मुताला किया, उलमा के अक़वाल पढ़े, तो ये निकल करके आया कि उस जमाने में जो बड़ा शख्स होता था, जागीरदार होता था, बादशाह होता था, पैसे वाला होता था, दौलत वाला होता था, सियासतदान होता था, सरवत और जह वाला होता था, अजमत व शान वाला होता था, बुलंदी वाला होता था, अगर उसका बच्चा जिना करता था तो उसको सजा नहीं दी जाती थी, उसका बेटा जिना करता था उसको सजा नहीं दी जाती थी। लेकिन वही गुनाह अगर किसी गरीब से होता था तो उसको रज्म किया जाता था, वही गुनाह अगर किसी फकीर से होता था तो उसको रज्म किया जाता था। बादशाह का बेटा अगर वही काम करे उसे सजा ना दी जाए और वही काम कोई छोटी कास्ट का इंसान करे, गरीब इंसान करे तो उस शख्स को उस गुनाह की सजा जरूर दी जाने लगी थी। लोगों ने फिर आगे जाकर के ये देखा कि एक बड़े शख्स का बेटा उससे जिना का सुदूर हुआ, उसको सजाएं देने से लोग आनाकानी करने लगे। उसके चंद दिनों के बाद एक गरीब शख्स से वही गुनाह हुआ, जब उसको सजा देने की बात आई तो गरीब शख्स का जो कबीला है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि पहले उस शख्स को जिना की सजा दो जिस शख्स ने जिना करने के बाद सिर्फ बड़े होने की बुनियाद पर और एक बादशाह का करीबी होने की बुनियाद पर अपने आप को सजा से बचा लिया। तो फिर यहाँ दानिशवरान कौम मिल्लत बैठते हैं और सब बैठ करके एक फैसला करते हैं और वो फैसला ये करते हैं कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि सभी लोगों को जिना की जो रज्म की सजा है उस सजा को मंसूख कर दिया जाए, खत्म करके ऐसी सजा मुकर्रर की जाए कि अगर अमीर से भी वो गुनाह हो तो वो सजा दी जाए, गरीब से भी वो गुनाह हो तो वो सजा दी जाए। और फिर उन लोगों ने मुकर्रर किया कि अगर किसी से भी जिना हो तो गधे पर बिठा करके मुंह में काली पोत करके उसको समाज में घुमाया जाए। और इस तरह से जो रज्म की सजा थी वो सजा यहूदियों ने घोड़े और गधे पर बिठाकर काला मुंह कराकर समाज में फिराने के तौर पर तब्दील करवा लिया। और ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून, इसमें सरी साफ उन लोगों ने तब्दीली पैदा कर दी, जिसका ये नतीजा हुआ कि यहूदियों में जिना का कारोबार बढ़ गया, जिसका ये नतीजा हुआ कि यहूदियों की बच्चियां सलामत नहीं रही, जिसका ये नतीजा हुआ कि यहूदियों में हर शख्स के अंदर जो जिना की सजा का खौफ था वो खौफ खत्म हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम आज देखते हैं तो क्या आज कोई दबदबे वाला शख्स जिना के कानून से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्या आज समाज को देख करके, कास्ट को देख करके, चेहरे को देख करके, नस्ल को देख करके, जात को देख करके, रुख को देख करके, चेहरा देख करके, बिरादरी देख करके सजाओं का इंतखाब नहीं हो रहा है? अगर कोई नेता का करीबी काम करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, वही काम कोई गरीब शख्स करे तो उसको सजा दी जाती है। पॉलिटिशियंस अगर हो, उनका करीबी अगर कोई हो तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन वही काम कोई गरीब शख्स से हो जाए तो उसको सजा दी जाती है। यही चीज तो शरीयत इस्लामिया ने पहले खत्म की है कि जिसको भी सजा दो तो सजा चेहरा देख करके मत दो, सजा चेहरा देख करके मत दो, बल्कि सजा उसका जुर्म देख करके दो। अगर बादशाह से वो गुनाह साबित हो जाए तो बादशाह को भी वही सजा दी जाए जिस सजा का जिम्मेदार और हकदार एक गरीब शख्स उस गुनाह को करने के बाद होता है। और इस तरह से जब शरीयत मोहम्मदी के नफाज के बाद मक्के की सरजमीन में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानियों के लिए सजा मुकर्रर की थी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जब बज़ाहिर तशरीफ ले गए, मक्का अमन का गहवारा बन चुका था। मदीनतुर रसूल को लोग
जगह से ताबीर करते थे। मक्का में गुनाहों का कोई बोल बाला नहीं था, गुनाह नजर से भी नहीं आते थे। अगर नजर से कुछ आता था तो औरतों की इज्जतें होती थी, औरतों की पारसाई तस्लीम की जाती थी। वही औरत जिसे कल भेड़ियों की तरह समझा जाता था और जानवरों की तरह पैरों से रोला जाता था, उसी औरत को अब माँ की शक्ल में दुनिया देखती है, उसी औरत को अब बहन की शक्ल में दुनिया देखती है, उसी औरत को अब बीवी और बच्चे की शक्ल में दुनिया देखती है। कल जिसे हवस का निशाना बनाया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानून के नफाज के बाद अब वही औरत घर का ताज बनती हुई नजर आती है, घर का मुखिया बनती हुई नजर आती है और अपने बच्चों की सही परवरिश करने वाली मां बनती हुई नजर आती है। सामीन इकराम, कुरान करीम हर मर्ज की दवा देता है। वला ताखुद बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। जब जानी और जानिया से जिना का सबूत शरीयत के कानून के मुताबिक हासिल हो जाए तो उनको सजाएं दी जाएं। क्या कानून है यार। अगर बाप बादशाह हो और बेटा गुनाहगार हो, अगर बाप चाहो अजमत वाला हो, बेटा गुनाहगार हो, या बेटा पावर में हो और बाप गुनाहगार हो, भाई गद्दी में हो और बाप गुनहगार हो, भाई के हाथ में मुल्क की बागडोर सौंप दी जाए और दूसरा भाई गुनाह करे, भाई को इफरात और तफरीत के हवाले कर दिया जाए और दूसरी बहन गुनाह करे, अपनी छाती का दूध पिलाने वाली मां वो मलका और बादशाह बन जाए और उसके बच्चे गुनाह करे, इंसानी फितरत है। दो अनजान शख्स आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन बाप से कहा जाए कि अपने बेटे को मारो, भाई से कहा जाए कि अपने भाई को मारो, मां से कहा जाए अपनी बेटी को मारो, चचा से कहा जाए अपने भतीजे को मारो, इस सजा में जरूर इंसान का दिल कांप उठेगा। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दे दिया, मुजरिम से जल्लाद का कोई रिश्ता नहीं, ना ही बादशाह का मुजरिम से कोई रिश्ता। न जल्लाद के हाथ कांपते हैं कोड़े बरसाने में, ना बादशाह की जबान कांपती है हुक्म सुनाने में, क्योंकि बादशाह का उस मुजरिम से कोई रिश्ता नहीं है, जल्लाद का उस मुजरिम से कोई रिश्ता नहीं है। सब के सब कानून और सजा को नाफिज करने लग जाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत बोलती है वला ताखुद बिहिमा राफा फी दीनिल्लाह, अल्लाह की सजाओं को कायम करने में तुम रिश्तेदारी की भी परवाह ना करो। रिश्तेदारी अगर तुम्हारे आड़े आए तो रिश्तेदारों को तर्क कर दो, खुदा के कानून को नाफिज कर दो। अगर बेटा तुम्हारा जानी है तो खुदा हुक्म देता है बाप बादशाह है तो बेटे पर सजा को नाफिज करे, भाई अगर जानी है और एक भाई बादशाह है तो भाई पर सजा नाफिज करे, बेटी अगर जानिया है और मां बादशाह है तो बेटी पर सजा नाफिज करे। और कुरान ने खुलेआम हुक्म दे दिया ऊंच नीच की दीवारों को गिरा दो, जात बिरादरी की दीवारों को गिरा दो, इफरात और तफरीक को खत्म कर दो, चेहरे देख करके सजाएं देने का कानून बंद कर दो, नस्ल और रंग के बेस पर सजाएं देने का कानून बंद कर दो, जात और बिरादरी देख करके सजाएं देने का कानून बंद कर दो, बल्कि सजा दो तो जुर्म को देख करके दो, और जुर्म करने के बाद चेहरा मत देखो कि वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई भी हो जिसने शरीयत के साथ गद्दारी की है और हवा की किसी बेटी की इज्जत तार की है, खा वो दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाला हो या यूपी की गलियों में घूमने वाला हो, जिसने भी हवा की बेटी के गले से दुपट्टा खींचा है उसको मंजर आम पर ला करके फांसी दे दिया जाए, गोली से उसकी छाती को छल्ली कर दिया जाए। एक दिन में अगर जिना की बढ़ती हुई तादाद पर लगाम ना लग जाए तो नई मखदे की मूंछ कटवा दी जाए।
सामीन इकराम, ये है मजहब इस्लाम का कानून। और खुले तौर पर अल्लाह के रसूल हम लोगों से, सारी कायनात से इरशाद फरमाते हैं, वला ताखुद बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। जब गुनहगारों से गुनाह का सुदूर हो जाए तो उन पर हद नाफिज करने में रिश्तेदारी तुम्हारे आड़े ना आए, भाईचारगी तुम्हारे आड़े ना आए, माँ बाप का प्यार तुम्हारे आड़े ना आए, किसी भी चीज की तलवार तुम्हारे आड़े ना आए, बल्कि तुम सिर्फ शरीयत मोहम्मदी को देखो, अल्लाह के कानून को देखो और उस कानून को नाफिज कर दो। उस समाज से गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, उस शहर से गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। और दुनिया ने अपनी जागती हुई निगाहों से देखा है कि जिस जिस शहर में, जिस जिस मुल्क में रसूल पाक का कानून नाफिज किया गया है, उस मुल्क से उस गुनाह का खात्मा हो गया। और हम सब तो पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद हैं। आप बताओ, अगर हमारे समाज में अंसारी बिरादरी है, हमारे समाज में मंसूरी बिरादरी है, हमारे समाज में खान भाई भी है, हमारे समाज में पठान भाई भी हैं और हमारे समाज में रंगरेज भाई भी हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। लेकिन हर समाज की अलग अलग कुयूद हैं, हर समाज के अलग अलग कानून है। बचपन में हमने सुना था कि किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, बचपन में हमने सुना था किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया तो उस बाप का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। ये हुक्का पानी क्यों बंद किया गया? हुक्का पानी इसीलिए तो बंद किया गया। हुक्का पानी कहते किसको है? हुक्का पानी इसको कहते हैं कि जिसका हुक्का पानी बंद किया गया वो जब परमे में पानी लेने जाएगा तो उस वक्त कोई उसके साथ पानी नहीं लेगा। जब वो नल में पानी लेने के लिए खड़ा होगा तो उस वक्त उसके साथ खड़ा नहीं होगा कोई। उसके घर में अगर शादी हो तो कोई दावत में नहीं जाएगा। वो दूसरे के घर में शादी हो तो उसे कोई दावत नहीं देगा। दूसरे के घर वो नहीं शामिल हो सकता, उसके घर वो नहीं आ सकता, न वो किसी से बात करेगा, न कोई दूसरा उससे बात करेगा, न वो किसी के घर में जा सकता है, न कोई दूसरा उसके घर में जा सकता है। जब समाज के 4 लाख लोगों के दरमियान किसी एक शख्स को यह सजा दी गई तो वो अपने आप में सोच रहा है कि ऐ अल्लाह, मुझसे कैसा गुनाह हो गया कि मैं अपने लोगों के यहाँ नहीं जा सकता, अपने बाप के यहाँ नहीं जा सकता, अपने भाई के यहाँ नहीं जा सकता, अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकता, हैंडपंप पे पानी लेने नहीं जा सकता, किराने की दुकान से किराने का सामान नहीं खरीद सकता। जहां भी मैं जाता हूँ हुक्का पानी की सजा मेरे सामने आती है, और एक हल्की सी सजा में जिसमें न मौत का कोई शायबा है, न मौत का कोई अंदेशा है, एक हल्की सी सजा में जो 4 लाख मुसलमान होते हैं, समाज का एक बड़ा तबका होता है, उनको ये नसीहत मिल जाती है कि एक शख्स से ऐसा गुनाह हुआ है, धोखे से भी उस गुनाह के करीब मत होना, वरना तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है, तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। अब आप बताओ मेरे भाइयों कि वो शख्स का गुनाह जिसको मंजर आम पर लाखों लोगों के दरमियान पत्थर मार मार करके हलाक करने की सजा दी जाए तो जो लाखों लोग देखेंगे उनके जिस्म में क्या बात पैदा होगी? उनके जिस्म में यही बात पैदा होगी, इस शख्स की सजा से मेरी रूह कांपती है, इस शख्स की सजा से जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाता है, इस शख्स की सजा को देख करके मेरे नफ्स से ये आवाज आती है कि कुछ भी कर लेना, ऐसा गुनाह ना करना कि मंजर आम पर सजा दी जाए। और एक शख्स को सजा देने की वजह से पूरा समाज उस गुनाह से महफूज हो जाता है, पूरा शहर उस गुनाह से महफूज हो जाता है, पूरा मुल्क उस गुनाह से महफूज हो जाता है। और इसी कानून का नाम है कानून मुहम्मदी, कानून इस्लाम, जिसको लोगों के दरमियान अगर आज भी लागू कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाए, तो इस गुनाह को 100% अगर नहीं खत्म किया जा सकता तो 99% जरूर खत्म किया जा सकता है। अभी जो ये तरह तरह की डिबेट चल रही है पिछले 15 दिनों से, हाथरस गैंग रेप, अभी मध्य प्रदेश में भी कहीं पर हुआ था 8-10 दिन पहले। 4-6 खबरें तो सोशल मीडिया पर आती हैं, लाखों खबरें वो होती हैं जो लाज बचाने के लिए, इज्जत छुपाने के लिए दफन कर दी जाती है, मंजरे आम पर नहीं आती वो खबर। इन सारे चीजों से हमें अगर अपने समाज को, शहर को और मुल्क को बचाना है, वो सजाएं मुकर्रर की जाएं जिन सजाओं से ना सिर्फ जानियों को सजा दी जाए बल्कि जो उनके मुआविनो मददगार हैं उनसे भी बाज़पुर्स हो, और ऐसी सजा दी जाए कि दूसरों को देख करके ये नतीजा निकालना पड़े कि हमसे अगर कभी ये गलती हुई तो हमें भी ऐसी सजा मिलेगी। यही मुतालबा होता है हमारा। और आज
इस मस्जिद की तरफ से, यहाँ के स्टेज की तरफ से और इस जिम्मेदार मंच से मैं यही कहता हूँ हुकूमत हिंद से कि हुकूमत हिंद हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी जिना का काम हो रहा है, हर जानी को खड़े होकर के फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हर जानी के छाती को गोलियों से छलनी किया जाए, खा वो किसी भी मजहब का हो, खा वो किसी भी कास्ट का हो, खा वो किसी भी बिरादरी का हो। और अगर और कोई बात आती है तो हमें बुलाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों के सामने उस जानी को सजा दी जाए, और फिर देखते हैं कि मुल्क में जिना का खात्मा कैसे नहीं होता है और मुल्क से जानियों का खात्मा कैसे नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अफसरान लीडरान मौजूद हैं उन्हें वो कानून बनाने की तौफीक अता करे जिस कानून से समाज का भला हो, मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी कौम का, पूरे मुल्क का भला हो और मुल्क की तरक्की हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि